Lesson 12, The Ant and the Grasshopper. When I was a very small boy, I was made to learn by heart certain of the fables of La Fontaine and the moral of each was carefully explained to me. जब मैं बहुत छोटा लड़का था तो मुझसे ला फोंटेन की कुछ दंतकथाएं ज़बानी याद करवाई गईं और उनकी शिक्षाएं मुझे ध्यानपूर्वक समझाई गईं. Among those I learnt the fable, The Ant and the Grasshopper, which is devised to bring home to the young the useful lesson that in an imperfect world industry is rewarded and giddiness punished. उनमें से एक कहानी थी चींटी और टिड्डा, जिसे बच्चों को यह महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए गढ़ा गया था कि इस अपूर्ण दुनिया में परिश्रम का पुरस्कार मिलता है और लापरवाही की सजा. In this admirable fable, I apologize for telling something which everyone is politely, but inexactly, supposed to know. इस प्रशंसनीय दंतकथा में मुझे यह बताने के लिए क्षमा करें, जिसे सभी शिष्टाचारवश जानते तो हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं. The ant spends a laborious summer gathering its winter store, while the grasshopper sits on a blade of grass singing to the sun. चींटी अपनी गर्मी मेहनत से गुजारती है और सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करती है, जबकि टिड्डा घास की एक पत्ती पर बैठकर सूरज के सामने गाना गाता है. Winter comes and the ant is comfortably provided for, but the grasshopper has an empty larder. He goes to the ant and begs for a little food. सर्दी आती है और चींटी के पास पर्याप्त भोजन होता है, लेकिन टिड्डे के भंडार खाली होते हैं. वह चींटी के पास जाता है और थोड़ा भोजन मांगता है. When the ant gives him her classic answer, फिर चींटी उसे अपना प्रसिद्ध उत्तर देती है. What were you doing in the summer time? तुम गर्मियों में क्या कर रहे थे? Saving your presence, I sang all day, all night. मुझे माफ कीजिए, मैं गा रहा था, दिन रात गा रहा था. You sang. Why, then go and dance. तुमने गाया, तो अब जाओ और नाचो. I do not ascribe it to perversity on my part, but rather to the inconsequence of childhood, which is deficient in moral sense, that I could never quite reconcile myself to the lesson. मैं इसे अपनी हठधर्मिता नहीं मानता, बल्कि बचपन की अपरिपक्वता मानता हूँ, जिसमें नैतिक समझ की कमी होती है कि मैं इस शिक्षा से कभी पूरी तरह सहमत नहीं हो सका. My sympathies were with the grasshopper and for some time I never saw an ant without pudding. मेरी सहानुभूति हमेशा टिड्डे के साथ थी और कुछ समय तक मैं किसी चींटी को देखे बिना. My foot on it. In this summary, and, as I have discovered since, entirely human, fashion I sought to express my disapproval of prudence and common sense. मैंने अपने पैर से उसे कुचल दिया. इस संक्षिप्त और जैसा कि मैंने बाद में जाना, पूरी तरह मानवीय तरीके से मैंने सतर्कता और सामान्य बुद्धि के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करने की कोशिश की. I could not help thinking of this fable when the other day I saw George Ramsay lunching by himself in a restaurant. मैं इस दंतकथा के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका जब एक दिन मैंने जॉर्ज रैमसे को एक रेस्तरां में अकेले दोपहर का भोजन करते देखा. I never saw anyone wear an expression of such deep gloom. मैंने कभी किसी के चेहरे पर इतनी गहरी उदासी नहीं देखी. He was staring into space. वह शून्य में ताक रहा था. He looked as though the burden of the whole world sat on his shoulders. वह ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर हो. I was sorry for him. I suspected at once that his unfortunate brother had been causing trouble again. मुझे उस पर तरस आया. मुझे तुरंत संदेह हुआ कि उसका बदकिस्मत भाई फिर से कोई परेशानी खड़ी कर रहा है. I went up to him and held out my hand. मैं उसके पास गया और अपना हाथ बढ़ाया. How are you? I asked. आप कैसे हैं? मैंने पूछा. I'm not in hilarious spirits, he answered. मैं बहुत खुश नहीं हूँ, उसने जवाब दिया. Is it Tom again? क्या फिर से टॉम की वजह से? He sighed. उसने एक गहरी सांस ली. Yes, it's Tom again. हाँ, यह फिर टॉम ही है. Why don't you chuck him? You've done everything in the world for him. You must know by now that he is quite hopeless. तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? तुमने उसके लिए दुनिया भर की कोशिश कर ली है. अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वह पूरी तरह से बेकार है. I suppose every family has a black sheep. मुझे लगता है कि हर परिवार में एक काला भेड़ होता है.
Tom had been a sore trial for 20 years. Tom 20 सालों से एक बड़ी परेशानी बना हुआ था. He had begun life decently enough. He went into business, married and had 2 children. उसने जीवन की अच्छी शुरुआत की थी. वह व्यापार में गया, शादी की और उसके 2 बच्चे हुए. They were perfectly respectable people and there was every reason to suppose that Tom Ramsey would lead a useful and honorable career. वे पूरी तरह से सम्मानित लोग थे और हर कारण था यह मानने का कि टॉम रैमसे एक उपयोगी और सम्मानजनक करियर बनाएगा. But one day, without warning, he announced that he didn't like work and that he wasn't suited for marriage. लेकिन एक दिन, बिना किसी चेतावनी के, उसने घोषणा कर दी कि उसे काम पसंद नहीं है और वह शादी के लिए उपयुक्त नहीं है. He wanted to enjoy himself. वह बस अपनी जिंदगी का आनंद लेना चाहता था. Would listen to no expostulations. वह किसी भी समझाने बुझाने की बात सुनने को तैयार नहीं था. He left his wife and his office. उसने अपनी पत्नी और अपना दफ्तर छोड़ दिया. He had a little money and he spent 2 happy years in the various capitals of Europe. उसके पास थोड़े पैसे थे और उसने यूरोप की विभिन्न राजधानियों में 2 सुखद वर्ष बिताए. Rumors of his doings reached his relations from time to time and they were profoundly shocked. उसकी हरकतों की अफवाहें समय समय पर उसके रिश्तेदारों तक पहुंचती रहीं और वे गहरे सदमे में थे. He certainly had a very good time. उसने वाकई बहुत अच्छा समय बिताया. They shook their heads and asked what would happen when his money was spent. उन्होंने सिर हिलाया और सोचा कि जब उसके पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा. They soon found out he borrowed. उन्हें जल्दी ही इसका जवाब मिल गया. उसने उधार लेना शुरू कर दिया. He was charming and unscrupulous. वह आकर्षक था लेकिन बेईमान भी. I have never met anyone whom it was more difficult to refuse a loan. मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिससे कर्ज देने से इनकार करना इतना मुश्किल हो. He made a steady income from his friends and he made friends easily. वह अपने दोस्तों से नियमित रूप से पैसे उधार लेता था और नए दोस्त आसानी से बना लेता था. But he always said that the money you spent on necessities was boring, the money that was amusing to was the money you spent on luxuries. लेकिन वह हमेशा कहता था कि जरूरतों पर खर्च किया गया पैसा उबाऊ होता है. असली मजा तो उस पैसे में है जो विलासिता पर खर्च किया जाए. For this he depended on his brother George. इसके लिए वह अपने भाई जॉर्ज पर निर्भर था. He did not waste his charm on him. उसने अपनी आकर्षक बातों को जॉर्ज पर खर्च नहीं किया. George was a serious man and insensible to such enticements. जॉर्ज एक गंभीर व्यक्ति था और ऐसे प्रलोभनों से अछूता था. George was respectable. जॉर्ज सम्मानजनक व्यक्ति था. Once or twice he fell to Tom's promises of amendment and gave him considerable sums in order that he might make a fresh start. 1-2 बार वह टॉम के सुधरेंगे वादों में फंस गया और उसे अच्छी खासी रकम दे दी ताकि वह नई शुरुआत कर सके. On these Tom bought a motor car and some very nice jewelry. इस पैसे से टॉम ने एक मोटर कार और कुछ सुंदर आभूषण खरीदे. But when circumstances forced George to realize that his brother would never settle down, he washed his hands of him. लेकिन जब परिस्थितियों ने जॉर्ज को यह एहसास कराया कि उसका भाई कभी नहीं सुधरेगा, तो उसने अपने हाथ झाड़ लिए. Tom began to blackmail him. टॉम ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. It was not very nice for a respectable lawyer to find his brother shaking cocktails behind the bar of his favorite restaurant or to see him waiting on the box seat of a taxi outside his club. एक सम्मानित वकील के लिए यह अच्छा नहीं था कि वह अपने भाई को अपने पसंदीदा रेस्तरां में कॉकटेल बनाते देखे या अपने क्लब के बाहर टैक्सी की सीट पर बैठा हुआ पाए. Tom said that to serve in a bar or to drive a taxi was a perfectly decent occupation, but if George could oblige him with a couple of £100, he didn't mind of the honor of the family giving it up. टॉम ने कहा कि बार में काम करना या टैक्सी चलाना एक सम्मानजनक पेशा है, लेकिन अगर जॉर्ज उसे कुछ £100 दे दे तो वह परिवार की इज्जत के लिए यह काम छोड़ सकता है. जॉर्ज पेड. जॉर्ज ने पैसे दे दिए. Once Tom nearly went to prison. एक बार टॉम लगभग जेल चला ही गया था.
George was terribly upset. George बहुत ज्यादा परेशान हो गया. He went into the whole discreditable affair. उसने इस पूरे शर्मनाक मामले की जांच की. Really, Tom had gone too far. वास्तव में टॉम बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था. He had been vile, thoughtless and selfish, but he had never before done anything dishonest, by which George meant illegal, and if he had been prosecuted, he would assuredly be convicted. वह असंयमी, लापरवाह और स्वार्थी था, लेकिन उसने पहले कभी कोई बेईमानी नहीं की थी, जिसका मतलब जॉर्ज के अनुसार गैरकानूनी काम से था, और अगर उसके खिलाफ मुकदमा चलता, तो उसे निश्चित रूप से दोषी ठहराया जाता. But you cannot allow your only brother to go to gaol. लेकिन कोई अपने इकलौते भाई को जेल नहीं जाने दे सकता. The man Tom had cheated, called Cronshaw, was vindictive. जिस व्यक्ति को टॉम ने धोखा दिया था, जिसका नाम क्रॉनशॉ था, वह बदला लेने पर उतारू था. He was determined to take the matter into court. He said Tom was a scoundrel and should be punished. वह इस मामले को अदालत में ले जाने के लिए दृढ़ था. उसने कहा कि टॉम एक बदमाश है और उसे सजा मिलनी चाहिए. It cost George an infinite deal of trouble and £500 to settle the affair. इस मामले को निपटाने में जॉर्ज को बहुत अधिक परेशानी और £500 खर्च करने पड़े. I have never seen him in such a rage as when he heard that Tom and Cronshaw had gone off together to Monte Carlo the moment they cashed the check. मैंने उसे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था जितना कि तब, जब उसने सुना कि टॉम और क्रॉनशॉ चेक कैश कराने के तुरंत बाद एक साथ मोंटी कार्लो चले गए. They spent a happy month there. उन्होंने वहाँ एक खुशहाल महीना बिताया. For 20 years Tom raced and gambled, philandered with the prettiest girls, danced, ate in the most expensive restaurants, and dressed beautifully. 20 साल तक टॉम ने घुड़दौड़, जुआ खेला, सबसे खूबसूरत लड़कियों के साथ इश्क लड़ाया, नाचा, सबसे महंगे रेस्तरां में खाया और शानदार कपड़े पहने. He always looked as if he had just stepped out of a bandbox. वह हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह अभी-अभी किसी चमचमाते डिब्बे से निकला हो. Though he was 46, you would never have taken him for more than 35. हालांकि वह 46 साल का था, लेकिन उसे देखकर कोई भी उसे 35 से अधिक का नहीं समझता. He was a most amusing companion and though you knew he was perfectly worthless you could not but enjoy his society. वह एक बहुत ही मनोरंजक साथी था, और भले ही आप जानते थे कि वह बिल्कुल निकम्मा है, फिर भी उसकी संगति का आनंद लिए बिना नहीं रह सकते थे. He had high spirits, an unfailing gaiety and incredible charm. उसमें ऊंचा जोश, कभी न खत्म होने वाली मस्ती और अविश्वसनीय आकर्षण था. I never grudged the contributions he regularly levied me for the necessities of his existence. उसने अपनी जरूरतों के लिए मुझसे जो नियमित रूप से पैसे ऐंठे, उनके लिए मुझे कभी कोई शिकायत नहीं हुई. I never lent him £50 without feeling that I was in his debt. मैंने उसे कभी £50 उधार नहीं दिए बिना ये महसूस किए कि मैं ही उसका कर्जदार हूँ. Tom Ramsey knew everyone and everyone knew Tom Ramsey. Tom Ramsey सभी को जानता था और सभी Tom Ramsey को जानते थे. You could not approve of him, but you could not help liking him. आप उसे सही नहीं ठहरा सकते थे, लेकिन आप उसे पसंद किए बिना भी नहीं रह सकते थे. Poor George, only a year older than his scapegrace brother, looked 60. बेचारा जॉर्ज, जो अपने आवारा भाई से सिर्फ 1 साल बड़ा था, 60 साल का दिखता था. He had never taken more than a fortnight's holiday in the year for a quarter of a century. पिछले 25 वर्षों में उसने कभी भी साल में 15 दिनों से ज्यादा की छुट्टी नहीं ली थी. He was in his office every morning at 9:30 and never left it till 6. वह हर सुबह 9:30 बजे अपने दफ्तर में होता और शाम 6 बजे से पहले कभी नहीं निकलता. He was honest, industrious. वह ईमानदार और मेहनती था. And worthy. He had a good wife, to whom he had never been unfaithful even in thought, and 4 daughters to whom he was the best of fathers. और योग्य था. उसकी एक अच्छी पत्नी थी, जिसके प्रति वह कभी भी विचारों में भी बेवफा नहीं हुआ था, और 4 बेटियां थीं, जिनका वह सबसे अच्छा पिता था. He made a point of saving a third of his income and his plan was to retire at 55 to a little house in the country where he proposed to cultivate his garden and play golf.
वह अपनी आय का 1/3 भाग बचाने का विशेष ध्यान रखता था। उसकी योजना थी कि वह 55 वर्ष की उम्र में एक छोटे से गांव के घर में रिटायर हो जाए, जहां वह अपना बगीचा लगाएगा और गोल्फ खेलेगा। His life was blameless. उसका जीवन निष्कलंक था। He was glad that he was growing old because Tom was growing old too. वह इस बात से खुश था कि वह बूढ़ा हो रहा था, क्योंकि टॉम भी बूढ़ा हो रहा था। He rubbed his hands and said, "It was all very well when Tom was young and good looking, but he's only a year younger than I am." उसने अपने हाथ मलते हुए कहा, सब कुछ ठीक था जब टॉम जवान और सुंदर था, लेकिन वह मुझसे सिर्फ 1 साल छोटा है। In 4 years he'll be 50. He won't find life so easy then. 4 साल में वह 50 का हो जाएगा। तब उसे जिंदगी इतनी आसान नहीं लगेगी। I shall have 30,000 pounds by that time. उस समय तक मेरे पास 30,000 पाउंड होंगे। For 25 years I've said that Tom would end in the gutter, and we shall see how he likes that. 25 साल से मैं कह रहा हूँ कि टॉम की जिंदगी अंततः गटर में ही जाएगी, और हम देखेंगे कि उसे यह कैसा लगता है। We shall see if it really pays best to work or be idle. हम देखेंगे कि सच में मेहनत करने का लाभ होता है आलसी रहने का। Poor George. I sympathized with him. बेचारा जॉर्ज, मुझे उसके प्रति सहानुभूति थी। I wondered now as I sat down beside him what infamous thing Tom had done. मैं सोचने लगा कि टॉम ने अब कौन सा घृणित काम किया होगा। George was evidently very much upset. जॉर्ज स्पष्ट रूप से बहुत परेशान था। Do you know what's happened now? He asked me. क्या तुम्हें पता है अब क्या हुआ? उसने मुझसे पूछा। I was prepared for the worst. मैं सबसे बुरी खबर सुनने के लिए तैयार था। I wondered if Tom had got into the hands of the police at last. मैं सोचने लगा कि क्या आखिरकार टॉम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। George could hardly bring himself to speak. George इतनी मुश्किल से बोल पा रहा था। You're not going to deny that all my life I've been hardworking, decent, respectable and straightforward. तुम यह इनकार नहीं कर सकते कि मैं पूरी जिंदगी मेहनती, सभ्य, सम्मानीय और ईमानदार रहा हूँ। After a life of industry and thrift, I can look forward to retiring on a small income in gilt-edged securities. मेहनत और बचत की जिंदगी बिताने के बाद मैं एक मामूली आय पर रिटायर होने की उम्मीद कर सकता हूँ। I've always done my duty in that state of life in which it has pleased Providence to place me. मैंने हमेशा उस जीवन में अपना कर्तव्य निभाया है जहाँ मुझे विधि ने रखा है। True, सही है। And you can't deny that Tom has been an idle, worthless, dissolute and dishonorable rogue. और तुम यह भी नहीं नकार सकते कि टॉम आलसी, निकम्मा, चरित्रहीन और बेईमान व्यक्ति रहा है। If there were any justice, he'd be in the workhouse. अगर न्याय होता तो वह मजदूरों के आश्रय गृह में होता। True, सही है। George grew red in the face. जॉर्ज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। A few weeks ago he became engaged to a woman old enough to be his mother. कुछ हफ्ते पहले उसने एक ऐसी औरत से सगाई कर ली थी जो उसकी माँ की उम्र की थी। And now she's died and left him everything she had. और अब उसकी मृत्यु हो गई और उसने टॉम के नाम अपनी पूरी संपत्ति कर दी। £500,000, a yacht, a house in London and a house in the country. 5 लाख पाउंड, एक यार्ड, लंदन में एक घर और गांव में एक हवेली। George Ramsay beat his clenched fist on the table. जॉर्ज रामसे ने गुस्से में अपनी मुट्ठी मेज पर दे मारी। It's not fair, I tell you, it's not fair. Damn it, it's not fair. यह अन्याय है, मैं तुमसे कहता हूँ, यह अन्याय है। हद तेरे की, यह बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। I could not help it. I burst into a shout of laughter as I looked at George's wrathful face. मैं खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही मैंने जॉर्ज के क्रोधित चेहरे को देखा, मैं जोर से हंस पड़ा। I rolled in my chair. I very nearly fell on the floor. मैं अपनी कुर्सी पर लोटपोट हो गया, मैं लगभग जमीन पर गिर ही पड़ा। George never forgave me.
जॉर्ज ने मुझे कभी माफ नहीं किया। But Tom often invites me to excellent dinners in his charming house in Mayfair. लेकिन टॉम अक्सर मुझे अपने खूबसूरत मीफेयर वाले घर में शानदार डिनर के लिए बुलाता है। And if he occasionally borrows a trifle from me, that is merely from force of habit. और अगर वह कभी कभार मुझसे थोड़ा बहुत उधार लेता है तो वह सिर्फ उसकी आदत के कारण है। It is never more than a sovereign. वह कभी 1 पाउंड से ज्यादा नहीं होता। W S Mom W S Mom Word meaning revised planned thought out योजना बनाई सोचा विचारा किसी चीज की योजना बनाना या सोचना। Giddiness lack of seriousness अस्थिरता हल्कापन गंभीरता की कमी चंचलता। Ascribe it to give credit to का श्रेय देना कारण मानना किसी चीज का कारण बताना या श्रेय देना। Reconcile अग्री टू समझौता करना स्वीकार करना किसी चीज से सहमत होना या तालमेल बिठाना। हिलेरियस फुल ऑफ लाफ्टर बहुत मजेदार हास्यास्पद बहुत ज्यादा हंसाने वाला। चक गिव अप छोड़ देना त्याग देना किसी चीज को छोड़ देना। एंटाइसमेंट टेम्पटेशन प्रलोभन लालच किसी चीज के प्रति आकर्षण या लालच। विंडिक्टिव रिवेंजफुल प्रतिशोधी बदले की भावना रखने वाला बदला लेने की भावना रखना। लेविड ऑन इम्पोज्ड ऑन लागू किया थोप दिया किसी चीज को किसी पर लागू करना। Like, share and subscribe.